the music is very good by Dinesh Arjuna. Dinesh Arjuna, all the songs are fantastic, and the last Rima Mukhari, the best one. पहला गाना सबसे अच्छा. Thank you. Entire team of Ragini. ऑडियो नहीं आता माइक से लाउड Champak ji, even again. Do you want Champak this side again? No, it's okay. See, I'm so thankful to my team who has been standing beside me, so steady, so calm, since so long, and believing in my characters, portraying them correctly, and believing in me. And today I'm going in the world of release. So I'm so happy that everybody, including Champak ji, having faith on me with such a big brand is something which is really, really a big thing for me. So I would request everybody to please come watch the film once it's released in the theatre and wish us luck and enjoy the movie. Thank you. Good afternoon, friends, and I welcome you all once again. Namaskar. I'm very, very thankful to Champak ji for it's a great privilege to have you here, and it's a great privilege to be connected to Venus. It's a great honor to be able to act in one of the films which is based on the works of Rabindranath Tagore, because Rabindranath Tagore is a figure whom we revere and the whole world knows. So for me it was a great privilege because so far I've acted in films, commercial films, but this is the first film where I am able to display my talent in a different way, in a non-glamorous way, and to be able to work Rima ji, who is absent today. So it was a good combo and great combination with a great woman director, and I wish her all the luck in the coming years, and thank you very much for listening to me very patiently, and I wish that this film is well received by the audience, because I think today the audience is prepared to appreciate all kinds of cinema. So I think it's coming, it's getting released at the right phase and at the right time. Thank you very much, Champak ji, once again, and I wish luck to all of us. Thank you so much. Thank you. According to her perspective, her view, her take on it. And I'm glad that I'm a part of it, and I've enjoyed the entire journey. And she's a very, she had shown a lot of perseverance. It was shot in 2009, so it's about to get released, and we all are keenly waiting for its release. So I thank all the wonderful actors who have been with me, so both with whom I shared a cracking chemistry during the shoot, and he's become a very good friend. Shubhrata, I know him for long. He's a very good actor, very good friend, and Varshaji, Rimaji, and everybody out there. Music is amazing. The entire cast and the crew, we worked really, really as a team and a family. It may sound cliche, but it's a fact. So I wish all the best to all of us. We have done it, and अमूल्य हिस्सा बन के रहेगी. So again, thank you to Rima ji for trusting me, and wish her all the best for this film. Thank you so much. Thank you all. And thank you all for coming and support. हाँ, अंत में बोलने का फायदा ये है कि ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, सब लोग बोल दिए हैं. बट एनीवे, चंपक सर को थैंक यू, क्योंकि रीमा जी ने बहुत मेहनत के साथ ये बहुत पैशनेटली इस पिक्चर को बनाया है, और इंडिपेंडेंट फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए. और अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि सैराट पिक्चर जो 65 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, आने वाले हो सकता है कि 75-80 तक चले जाएँ. तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि स्टार पावर तो है, साथ में कंटेंट का भी बहुत महत्व है. तो आई होप कि सबको पहले से सभी को पता है कि शायद दोबारा सोचेंगे और कंटेंट या स्क्रिप्ट पर ज़्यादा काम करेंगे, या स्क्रिप्ट राइटर को बहुत ज़्यादा और महत्व मिलेगा. और हम लोग एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब उनके बारे में क्या कहेंगे, मुझे नाम कहना ही नहीं है. पर बात यह है कि वो कहानी को दोबारा नए ढंग से पेश करने का जो साहस रीमा जी ने दिखाई, मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है.
सो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे आप लोग इंडिपेंडेंट फिल्मों को सपोर्ट कीजिए, जैसे वीनस ने किया, चंपक सर ने किया, और हमने पूरी कोशिश की पूरी टीम ने, वर्षा जी, सुलेखा, सुबोध, रीमा लालू जी और दिनेश जी ने बहुत अच्छा मतलब म्यूज़िक दिया है। जैसे सर दीपक सैफी साहब ने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं। इन्होंने शॉन उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है, इसमें लिरिक्स में इंग्लिश और बंगाली गाना भी है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग जाइए और www.com/winners देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि म्यूजिक रिलीज है। मुझे लगता है आप लोग जितना शेयर करेंगे हमारी इंडिपेंडेंट फिल्मों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, अगर बुरा लगे तो फिलहाल मत बोलिए। तो हम लोग ऐसे आप लोग को आनंद देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने वाले जो जितने सारे बहुत सारे लोग बम्बई शहर में बड़ी फिल्में नहीं बना पाते, तो जो कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है उनको ताकत मिलेगी और ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो और 4, 6, 10 सैराट हम लोग बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट स्टारकास्ट किस तरह से फाइनलाइज की गई है? देखिए, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कल्चर, आई हैव द सीड ऑफ अ बंगाली कल्चर। तो शुरुआत जो हुई हमारी इस फिल्म के जो नींव जो मेरे अंदर जो पनप रही थी वो ये है कि बीइंग फ्रॉम अ बंगाली बैकग्राउंड ये हम करना चाहते थे कि टैगोर के काम पे और आगे भी हम करेंगे, ये नहीं कि ये शुरुआत है, ये आगाज़ है, अंजाम अभी बहुत दूर है। तो हम ये सोच रहे हैं कि टैगोर को लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर हम इस फिल्म में और स्पेशली इन हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसमें अगर हम इसे सेल्यूलॉइड में ट्रांसफ़र करें तो लोगों को टैगोर को जानने का, जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जो बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं, तो उनको घर बैठे ये एक फैमिली ड्रामा है जिसके बारे में लोगों को जानने का मौका मिलेगा। टैगोर को हम जितना हो सके, क्योंकि लोग अलग अलग थॉट पे फिल्में बनाते हैं, तो हमारा ये था कि आई वांट टू मेक कल्चरल मूवीज़। शुरुआत मेरी ऐसी थी कि आई मेक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज़ ऑफ कोर्स, बट ये बहुत ज़रूरी था कि हमारी शुरुआत, ये हमारी इच्छा थी
और नेट पे भी हमने हमारे वेबसाइट में भी है कि क्यों मैंने शुरू की। मैं तब 6 साल की थी जब मैं अपने पापा के दोस्त के घर पे गई थी और वहाँ पे एक टूटे फूटे मकान है और थोड़ी सी बिजली, मतलब बिजली है नहीं है, उसमें मैंने एक फ़ोटो देखा। पहली बार मेरे जो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मेरी परिचय थी, तो वो उन्होंने माय फादर्स फ्रेंड ही सेड दैट इज़ रविंद्रनाथ ठाकुर। तो फ्रॉम दैट डे आई न्यू दैट रविंद्रनाथ इज़ गॉड। So, and it is true for so many people, and that is the reason Shanti Niketan is formed, और इस वजह से of course this is the beginning of it. और इस फिल्म के स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज की गई है? देखिए, हमने बहुत मनन करने के बाद जो स्टारकास्ट हमने फाइनलाइज़ किए थे वो बहुत सोच विचार के साथ, क्योंकि ये जो बिमला का किरदार है जो मेरे मेन प्रोटैगनिस्ट थी, वो 6 साल से शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रही थी। तो ऐसे मुझे कोई चाहिए था जो ये निभा सके, जो ये किरदार निभा सके और वो लगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आजकल जैसे हम लोग सोचते हैं हीरोइन है तो हीरोइन की तरह दिखनी चाहिए, से सुंदर दिखनी चाहिए, वो निभाए नहीं निभाए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बाद में देखते हैं एक्टिंग के। तो मुझे श्रीलेखा में बिमला नज़र आई, क्योंकि वो बिल्कुल वही चरित्र है जो टैगोर ने लिखा है, मुझे ऐसा लगा। तो बिमला, सुबोध जी, ऑफ कोर्स मैंने सुबोध जी के जब शुरू में फोटोग्राफ्स देखे, मैंने बोले क्योंकि ही हैज़ दैट बंगाली लुक, हालांकि वो महाराष्ट्रन है, कोई बंगाल से उनका कोई नाता नहीं है, फिर भी ही हैज़ गॉट दैट बंगाली लुक। And so then I spoke, and all of them, Subrat, he is from theatre, and पहली बात तो है एक किरदार को जीने के लिए उतना समय देना पड़ता है, उतनी सोच के साथ, उतने विचार के साथ जुड़ना पड़ता है। एंड ऑल माई कैरेक्टर्स, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि उतना समय देकर जुड़ना जो ये लोग मेरे साथ किए हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दे आर अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। मैं ये रविंद्रनाथ की उपन्यास से ये कैसा काम करने का और किस तरह का रोल निभा रही है आप? मेरी हमेशा से ये तमन्ना थी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो स्टोरी हो उसके ऊपर आधारित एक फिल्म करूं, और वो मेरी तमन्ना पूरी हुई। अचानक से करियर के इस मोड़ पे ऐसा लग रहा था कि कोई सशक्त रोल हो, मतलब ऐसा जो नॉन ग्लैमरस भी हो, और वैसा ये विधवा का रोल मैं इसमें निभा रही हूँ, जिसके जीवन में बिल्कुल कोई कलर नहीं है, और उस विधवा का जो मतलब आज से 100 साल पहले का पीरियड दिखाया है, या 90 इयर्स बैक का जो पीरियड है, वो जो माहौल दिखाया है, उसमें वो जो विधवा है वो बहुत ही मतलब ऐसी नहीं है कि वो सब सहन करने वाली ऐसी विधवा नहीं है, जो क्या बोलते हैं उसको, जिसका अपना ओपिनियन है, जो अपनी राय देना बिल्कुल भी ये नहीं करती है, वो बोल देती है अपनी राय जो भी है। और थोड़ी सी कड़वाहट उसके जीवन में आ गई है, क्योंकि वो बोलती है कि मैं अपनी इच्छा से तो विधवा नहीं हुई हूँ, ये तो नसीब का खेल है, उसकी वजह से मैं विधवा हो गई हूँ। वो एक जवान विधवा है और उसको मच्छी खाना मना है, उसको त्योहार में शामिल होना मना है, तो उसे बहुत व्यथित है। फिर भी उसमें एक स्पिरिट है उस विधवा में, तो वो मुझे रोल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक मेरा जो इमेज रहा है इंडस्ट्री में वो बहुत ही ग्लैमरस टाइप का इमेज रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत ही हटके रोल था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये निभाते हुए। और उसमें एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये स्टोरी है, तो स्टोरी लाइन तो बहुत ही पावरफुल है और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए थे। आपका जो जुड़ाव है मराठी फिल्म में भी रहा है, हिंदी फिल्म में भी रहा है, आज की मराठी फिल्म खैरात की बात कर लें, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, क्या कहना चाहेंगे जो इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा है, इतना इवॉल्व कर रहा है, कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, एक ज़माना ऐसा था, मैं इस ज़माने की विटनेस रही हूँ। मैंने 22-23 साल पहले मेरे करियर को शुरुआत की। मराठी में हमेशा अच्छी फिल्में बनी हैं, मराठी में हमेशा अच्छे एक्टर रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स रहे हैं, जो आज भारतीय सिनेमा के जो पितामह हैं दादा साहब फाल्के, वो भी एक महाराष्ट्रियन थे। इसके बावजूद हमेशा जब भी कोई मराठी फिल्म हिट्स भी हुए हैं, जैसे मेरी पहली फिल्म गम्मत जम्मत बहुत बड़ी सुपर हिट थी, लेकिन हमारी जो फेम है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित रहती थी आज तक, और वी वर ऑलवेज ट्रीटेड एज पुअर कज़न्स ऑफ हिंदी सिनेमा। तो हमें वो रिकग्निशन कभी किसी ने दिया नहीं,
हालांकि टैलेंट उतना ही था जितना आज है, लेकिन आज मीडिया इतना बढ़ गया है, आज मराठी को वो स्थान मिल गया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि मैं उस ज़माने की साक्षी हूँ जब मराठी को ये स्थान नहीं मिला था। हमेशा हमें सौतेलापन दिया गया था, लेकिन आज मराठी सिनेमा ग्लोबल हो गया है और मुझे ऐसा लगता है वो क्या बोलते हैं उसे, इट हैज़ कम इन फुल ब्लूम। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज उसकी अवेयरनेस इतनी फैल गई है, सब मतलब ऑस्कर में भी वो जा सकता है, कान फिल्म फेस्टिवल में उसका अस्तित्व है, तो हर जगह पे मराठी फिल्म का आज अस्तित्व है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपके इस प्रोजेक्ट के अलावा और इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, आप स्क्रिप्ट कर रही हैं? मेरी अभी एक फ़िल्म आ रही है अन्नागिरी नाम की, जिसमें मेरे साथ अशोक सराफ है, अंकुश चौधरी है और मैं हूँ उसमें। तो ये कॉमेडी है थोड़ी सी फिल्म और थोड़ा सा पॉलिटिकल भी बेस है, और एक पॉलिटिकल सटायर में कर रही हूँ जिसका नाम है GR, जिसकी अभी शूटिंग चल रही है, लेकिन अन्नागिरी बिल्कुल रिलीज़ के लिए तैयार है। फिर एक हिंदी फिल्म मेरी रिलीज़ के लिए तैयार है, शुक्ला जी स्ट्रीट बॉम्बे उसका नाम है, जिसमें मेरे साथ आदित्य पंचोली हैं, संजय सूरी हैं। तो इकबाल सुरती के नावल के उपन्यास के ऊपर वो फिल्म है, तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और ये जो मेरी भूमिका है इसमें, ये भी बड़ी सशक्त भूमिका है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह के रोल करियर के इस मोड़ पर मैं कर रही हूँ। यू वेलकम। I really always wanted to be part of more films. That's the reason I have very few films. So, because I think my nose reaches to the ceiling. So, jokes apart, the story itself, and since I've already said this is a novel based on Tagore's work, and it has already been done by Satyajit Ray. So, there are two iconic figures, two iconic characters, and they are worshipped across the globe, and we are proud because, you know, being Bengalis, we feel they belong to us first and then to the rest of the world. So it was a challenge for me, of course, because I'm going to redo a classic, and well, there would be comparisons, there would be criticism, a lot of stuff, but I was open about it. मुझे ये लगा कि ठीक है, मैं ये challenge ले सकती हूँ, and let me see how much I can put into my effort and what the results will be. And I have done my bit, and it was a different take on Tagore's Bhori Baire, because Rima tried to make it more contemporary, because in the original Race film we didn't have song and dance things. I mean, they weren't dance, literally dance, but it was a little spiced up for the larger audience as well. So I guess we had a different touch, a different take on Bhori Baire, and Tagore would have been happy seeing the film. And seeing the trailer of the film looks very authentic, very real, you know, and very simple as well. It would have been easy to picturize the film, shoot the film. What was the challenge in picturizing the film as well? Challenge, we actors have put in 100% of our effort. The rest was Rima's homework, Rima's perseverance, and we were good children actually, you know. So she was like a mother figure for all of us, and हम लोग अच्छे बच्चे थे, जो उन्होंने कहा हम लोग मतलब उनके डायरेक्शंस फॉलो किया, एंड कहीं पे जहाँ पे हम लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते थे, am I speaking ठीक-ठाक? So वहाँ पे रीमा ने हम लोग का बात सुनी, and it was really really lovely with Subodh, Subrat, Rima. And one more thing I would like to point out, that is for the past 5 years, I'm talking about Bengal, nation-wise there had been a drastic socio-economic, political and sexual revolution going on.
India is still being considered as a developing nation, so the change is more rapid in our country. So the controversies, the confusions that today we face, Tagore has written about it way back. Ghode Baire is actually, घर में या बाहर में. So the threshold plays a very important part in the novel as well as in the film. So it's about women empowerment and जब भी कोई नेशन का कुछ रेवोल्यूशन होता है, सबसे आगे विमेन का ही हाथ होता है उस रेवोल्यूशन को आने में, be it education, be it anything whatsoever. So this is about a woman coming to terms with her sexuality and whether she has really come to terms with it. So that therein lies the confusion, therein lies the conflict, जो अभी भी I guess middle class में है, सिर्फ middle class, across section, it's there amidst everybody. So Tagore has written way back, so he thinks ahead. Thank you so much. सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, जो किरदार आपने निभाए वो कोई आसान किरदार नहीं, बहुत ही चैलेंजिंग किरदार होगा. जब आपको ये प्रोजेक्ट सुनाया गया इस बारे में, इस रोल के बारे में, तो आपने तुरंत से नोट पड़ा कि आपको सोचना पड़ा इस बारे में? देखिए, ये प्रोजेक्ट जब मैंने सुना तो ये डेडली कॉम्बिनेशन, एक तो सत्यजीत रे ने बनाया था जिनको घर में आके ऑस्कर दिया, मतलब आई मीन लाइफ टाइम अचीवमेंट, और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन दोनों के बारे में मतलब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना छोटा आदमी हूँ. बट इस पिक्चर को रीमा जब बनाना मतलब मैं सोच रही थी, मैंने बोला आर यू श्योर कि पिक्चर तुम बनाओगी? नहीं मैं करूँगा. तो मैंने देखा कि जो लड़की इतनी पैशन के साथ बात कर रही है कि मैं पिक्चर बनाना चाहती हूँ, तो एज ए ट्रेंड एक्टर, और अब तो थिएटर की बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, तो क्यों ना और एक चैलेंज ले लें कि जिस रोल को सौमित्र चैटर्जी ने निभाया. तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके बाद मैं भूल गया. उसके बाद मैं इसलिए भूल गया क्योंकि मैं दिमाग में रखूँगा कि सत्यजीत रे ने बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवेल है, हाँ सौमित्र चैटर्जी ने ये रोल को किया, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं फंस जाऊँगा. और मैं पूरी ईमानदारी से अपने चरित्र को निभाने की कोशिश की, और अब आपके सामने है. आज म्यूज़िक रिलीज़ है, तो थोड़ा बहुत जो है तो लोग बोल रहे कि ठीक ठाक किया. लेकिन हाँ, एक बात कहूँ कि रीमा ने बहुत पहले पिक्चर बनाई थी, और बहुत मतलब पैशन जिसको कहते हैं ना कि चैन से सांस अब शायद रीमा ले पाएगी. तो इसलिए कुडोज टू रीमा मुखर्जी एंड कुडोज टू द होल टीम, क्योंकि अभी तक ये टीम इकट्ठे हैं. और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि रीमा लागू जी, रीमा मुखर्जी एज ए डायरेक्टर, वर्षा उसगांवकर, श्रीलेखा, सुबोध भावे और मनोज मित्रा जी. इत्तेफाक कि मनोज मित्रा साहब ने सत्यजीत रे के पिक्चर में वही रोल किया जो इस पिक्चर में भी किया. So it's a kind of coincidence, kind of history. So I'm very very thankful and gratitude to Venus, Mr. Champak sir, जिन्होंने अपना ब्रांड रीमा जी को दिया. So it's a great thing, great evening. So मैं यही कहूँगा कि आज म्यूज़िक रिलीज़ है. इस म्यूज़िक को डायरेक्ट किया हमारा दिनेश अर्जुना जी, बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक दिया उन्होंने. सुखविंदर साहब, कविता जी इसमें गाना गाया, बहुत सारे लोग और हैं, सैफी साहब और डॉक्टर दीपक ने इसका लिरिक्स किया. तो मैं तो कहूँगा कि सोशल मीडिया में आप बहुत कुछ देखते हैं, तो गो टू www.youtube.com/Venus, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि हम इस टाइप की जो किस्म की जो इंडिपेंडेंट फिल्में हम लोग बनाते हैं, जिसका हिस्सा हम होते हैं एज एन एक्टर, इसको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. क्योंकि अब आप लोगों के सामने अभी रिसेंटली सैराट पिक्चर ने क्या कितने करोड़ का मतलब बिजनेस की आप लोगों को पता है. तो हम तो चाहते हैं कि और सैराट हमारे सामने आए. इंडियन फिल्में सिर्फ मराठी में नहीं, मराठी, गुजराती, बंगाली, हर रीजनल फिल्म तरक्की करे, इंडियन फिल्म्स तरक्की करे, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. हम तो आप लोगों को आनंद देने की पूरी कोशिश करते हैं, आगे भी करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच अगेन. प्लीज़ लिसन द म्यूज़िक www.youtube.com/Venus. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर मत भूलिएगा. थैंक यू. देखिए, निखिलेश करके मेरा कैरेक्टर है, जो कि एक 1920 की कहानी है बंगाल की. तो उस समय में जो ज़मींदार हुआ करते थे बंगाल में, तो वैसे एक ज़मींदार है कि जो बहुत ही साफ़ सुथरा है. ठीक ढंग से कहा जाए तो आज के तारीख का मतलब उस तारीख का राम है, कि जो एक पत्नी में, एक वचन में, एक शब्द में बिलीव करता है, और उसके फैमिली के ऊपर, उसके गांव वालों के ऊपर, उसके किसानों के ऊपर, मतलब हर एक के ऊपर बहुत ही प्यार करने वाला, अपनी दोनों भाभियों के ऊपर उनको बहन मानने वाला, अपने बीवी के ऊपर बेहया मोहब्बत करने वाला, और अपने दोस्त पे भी बहुत सारा प्यार करने वाला ऐसा एक इंसान है, कि जो एक अच्छा इंसान का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है.
तो बिलीव करता है कि स्त्री पुरुष एक जैसे हो, एक समान काम करे, तो उसी के कारण अपने बीवी को वो इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर करता है, उसको म्यूज़िक सीखने के लिए मजबूर करता है, बेहया मोहब्बत उससे करता है। और 1920 का ये समय है कि जिस वक्त औरतें ज़्यादा बाहर आती नहीं थी, घर पे रहा करती थी, तब ये जाके अपनी बीवी को कहता है कि आप बाहर जाके कुछ कीजिए, इस दुनिया को देखिए, बहुत नज़दीक से देखिए। फिर जो उसके लाइफ में बीवी बाहर जाने के बाद जो होता है वो तो अनहोनी है कि जो उसके लाइफ में होता है, लेकिन बहुत ही ईमानदार, बहुत ही प्यार करने वाला, इट्स वेरी लवेबल कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के दौरान मुझे लाइफ में पहली बार इतना अच्छा इंसान पर्दे के ऊपर करने का मौका मिला और बहुत सारे रोमांटिक गाने भी करने के मौका मिले। कितना चैलेंजिंग रहा ये किरदार आपके लिए? चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि ये सब भाषा जो थी उसमें से बहुत सारे, हालांकि ये तो हिंदी और बंगाली थी, लेकिन बहुत सारे शब्द मुझे बंगाली में बोलने थे कि जिसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी तरीके से आना बहुत ज़रूरी था। तो रीमा जी ने और श्रीलेखा ने, सुब्रत ने, मनोज जी ने मुझे बहुत मदद की, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र हूँ, तो मेरा बंगाली तो इतना अच्छा है नहीं, तो मेरे लिए तो अजनबी लैंग्वेज है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए मुझे मदद की, बहुत सारे बंगाली तौर तरीके मुझे सिखाए कि जो मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे मतलब वो कैरेक्टर के लिए मुझे जानना बहुत ज़रूरी था और मैं उसको कर पाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो लॉन्च और फिर से वीनस का एक नया, तो हाउ मच? देखिए, बहुत सबसे पहले मैंने फिल्म देखी है, एक्चुअली पूरी फिल्म देखी है। मुझे रीमा जी ने फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया था। पिक्चर इतनी खूबसूरत बनी है, रविंद्रनाथ टैगोर का सब्जेक्ट है, उनके बेस के ऊपर है। तो जितने भी इसमें आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सुबोध भावे हो या अपना सुब्रत दत्ता हो या अपने श्रीलेखा मित्रा, वर्षा उसगांव, जितने भी आर्टिस्ट हैं, इतना खूबसूरत काम किया उन्होंने कि हर फ्रेम में मतलब रिलेशन के ऊपर एक फिल्म बेस है। तो और उसके साथ म्यूज़िक, उसके साथ 6-7 गाने हैं जो स्टोरी के साथ चलते रहते हैं। तो पूरी पिक्चर एक एक्चुअली बहुत एक परफेक्ट आर्ट, मतलब एक बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट लेके एक अच्छी फिल्म बनी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, अप्रिशिएट करें, क्योंकि इस टाइप का जो सिनेमा होता है वो कमर्शियल नहीं होता कि भाई हीरो हीरोइन आए, नाचे गाए, चले गए, गाना आया, मजाक हो गया, ऐसा नहीं। एक सब्जेक्ट है जो समझना है, जो बहुत माइंड को कूल करके हमें ये फिल्म देखनी है, तो वो फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी आपको प्रभावित करती है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मुझे, जिस तरह से रीमा जी ने डायरेक्ट की है फिल्म, तो उनको सारे मार्क्स उन्हीं को जाते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे आर्टिस्टों से काम कराना हो, चाहे म्यूज़िक लेना हो, लिरिक्स लिखना हो। इतनी मेहनत से काम किया। इनकी पहली फिल्म है, मैं तो हेड्स ऑफ टू हर की, आई थिंक शी इज़ बेस्ट। अगर इन्हें और कमर्शियल सिनेमा में भी काम करने को मिलेगा तो वो करेंगे काम। म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं वीनस म्यूज़िक के नाम से बहुत फेमस है, तो इस फिल्म की म्यूज़िक देखिए, म्यूज़िक बहुत मेलोडी म्यूज़िक है, इसमें कोई नाच गाने वाला, कोई उठापटक गाना नहीं है। इसमें कविता जी का गाना है, सुखेंद्र का गाना है, तो हर सिंगर का गाना है और मतलब मेलोडी है। जो ऐसा गाना नहीं है कि भाई आपने आज सुना और फिर वो फास्ट फूड की तरह नहीं गाना, लेकिन ये गाने बहुत ही मतलब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा एक सूथिंग मेलोडी है, अच्छी लिरिक्स हैं, अच्छी मेलोडी है जो आदमी गा भी सकता है। थैंक यू। मूवी आज म्यूज़िक लॉन्च है और म्यूज़िक और लिरिक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज इसके बिना मूवी अधूरी रह जाती है। तो कितने एक्साइटेड हो और क्या करना चाहेंगे? मैं म्यूज़िक डायरेक्टर दिनेश अर्जुना हूँ। ये जो फिल्म है ये रविंद्रनाथ टैगोर के नॉवेल पर आधारित है और रीमा जी ने यानी कलकत्ता से आके यहाँ उन्होंने काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर से वो लोग मिले। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, मुझे और किसी ने भेजा और उन्होंने मुझे सुना और सुन के उन्होंने अप्रिशिएट किया, ये मेरे लिए बड़ी बात। और मैं उनके कसौटी में खरा उतरा। सुखविंदर साहब ने 2 गाने गाए, बहुत ही लाजवाब, उन्होंने बहुत इन्वॉल्व होकर गाने गाए। हरिहरन साहब ने गाने गाए, कविता जी है, वसुंधरा दास जी है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। और मैं यही चाहूँगा कि गाने हमने आज भी गाने बनते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हमारे गाने बहुत जहन में रहना चाहिए लोगों के, वो मेलोडी, वो जो होना चाहिए, वो जो कशिश होना चाहिए, जो दिल को छूने वाली बात होना चाहिए सुरों की, वो हमने कोशिश की। पर आज की डेट में जैसे गाने चलते हैं वो पार्टी टाइप के गाने चलते हैं, तो
बात सही है आपकी, लेकिन होता क्या है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमको गाने बनाने पड़ते हैं। लेकिन हमने कोशिश की, हमारा इंग्लिश गाना है इसमें, उसको भी हमने वेस्टर्न और इंडियन मिक्स रखा है। सूफियाना भी हमने थोड़ा सा यूज़ किया है कि थोड़ा सा आज का रिदम हो, और सूफी मतलब हाई पिच के गाने हैं तो बच्चे भी पसंद करेंगे, ये मेरा दिल बोलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो सबसे पहले कि दिस हैज़ बीन अ वेरी परसिस्टेंट एंड अ वेरी पॉजिटिव एफर्ट बाय रीमा जी, एंड दिनेश जी ने मुझे आई वाज गिवन द चांस, थैंकफुल टू हिम। देखिए, आपने भी एक क्वेश्चन किया कि जो आज के जो गाने चल रहे हैं या आज की जो फिल्में चल रही हैं, इफ़ यू देखिए, आप लोग यहाँ पर हैं, सब लोग एक तरह से नहीं हैं, आपके थॉट्स, आपकी लाइकिंग, यहाँ पर जो लोग हैं उनके भी अलग हैं। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। यहाँ पर क्या होता है कि जो गाने हमने अभी किए, जो शब्द लिखे, वो मार्मिक है, वो फिलॉसफी से जुड़े हैं, वो टैगोर साहब की थिंकिंग से जुड़े हैं। बट इसकी भी चाहने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं मैडम। इट्स ओनली कि वी शुड रीच द राइट ऑडियंस एंड द राइट पीपल, एंड आई एम वेरी श्योर द वर्ड्स, द सॉन्ग, द लिरिक्स will definitely go through the hearts. I'm very sure about it. आप लोगों को सबको पसंद आएगा, बच्चों को पसंद आएगा, बड़ों को पसंद आएगा, बूढ़ों को पसंद आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गाने आप भी गाएंगे, ऐसे गाना भी गाई कि कैसा एक्सपीरियंस होता है? ये जो फिल्म है अर्धांगिनी हिंदी में, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो घरे बायरे बंगाली फिल्म कहानी के ऊपर बेस है। बहुत ही बढ़िया कहानी, और रीमा जी ने बहुत अच्छा से डायरेक्ट किया है। मैंने इसका बांग्ला वर्जन गाया, मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही बढ़िया। 2-3 गाना मैंने गाया, 3 गाना गाया उसमें, और कहानी जो इतना अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है, सोचने वाली बात है, और बहुत अच्छे से निभाया। म्यूज़िक और सॉन्ग से कितना इंपॉर्टेंट होता है फिल्म के सक्सेस के लिए, गाने का और संगीत का? म्यूज़िक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमेशा, और दिनेश जी ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया, गज़लनुमा कुछ गाना उन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया। और बाकी सुखी जी ने गाया, और हिंदी में कविता जी ने भी गाया, बांग्ला में मैंने गाया, तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा मेलोडी पसंद करती हूँ, तो कोई अच्छा गाना मिल जाता है तो गाने में मज़ा आता है। और प्रोफेशनल में कैसे लगा? कोई एल्बम लेके आ रही है, कोई फिल्म में गाना गा रही है, जैसे फिल्म? बहुत कुछ कर रही हूँ। अभी एक मेरा पंजाबी फिल्म में मैंने गाया, जिसका नाम है सड्डे सीएम साहब, बहुत चर्चित फिल्म है, बहुत हिट फिल्म है। उसमें राहत फ़तेह अली के साथ मैंने डुएट गाया, बहुत ही बढ़िया गाना, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा है कि बहुत हाई है उसमें, क्योंकि गाना कमाल का गाना है, रिदमिक मेलोडी। अभी 27 को रिलीज़ है।